Hello students, so welcome in the physics class. As yesterday or in the previous topic, we have discussed about the current sensitivity of the galvanometer and voltage sensitivity of the galvanometer. So we have found that the current sensitivity of the galvanometer, that is given by IS, is equal to deflection produced per unit current. So this we have found, that is equal to N A B upon K, where K is the restoring torque per unit twist. ये हमारे पास। और दूसरी बात है वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द galvanometer. So this we have found that it is equal to N A B upon K into R, or that is equal to IS upon R. That's right. Now the question arises that with the increase in the current sensitivity, is it necessary that the voltage sensitivity also increase? नेसेसरी की बात करते हैं हमारे पास। अब समझते हैं इसमें क्या बोला गया कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या ये जरूरी है कि हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें दैट द वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट आल्सो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है दैट दिस वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू IS अपॉन R. As this IS that increases, but there is a resistance also. So it is not necessary that with the increase in the current sensitivity, the voltage sensitivity that also increases. ये कोई जरूरी नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास voltage sensitivity that also depend on the resistance. बस यही आपके पास इसका आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, that is the sensitivity of the galvanometer. हम लोग बात करेंगे इसकी galvanometer की sensitivity के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। Sensitivity of galvanometer. Of galvanometer. When the galvanometer is said to be more sensitive, मतलब हमारे पास कोई भी galvanometer है वो ज़्यादा sensitive कब होगा उसकी बात करेंगे। A galvanometer is said to be more sensitive when it shows large deflection for very small current. थोड़ा सा करंट भी फ्लो करे तो भी आपके पास लार्ज डिफ्लेक्शन अगर शो कर देता है, इट मींस दैट द galvanometer that have a high sensitivity. So the sensitivity of the galvanometer is high when it shows large deflection for the small current. अब हमें पता है यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमने किया था कि थीटा दैट इज इक्वल टू NIAB, restoring torque that is equal to deflecting torque. So for given current I, ये करंट है ये जो फ्लो कर रहा है, दिस थीटा दैट इज इक्वल टू NAB अपॉन K into I मैंने यहाँ पर करंट गिवन है हमारे पास, उसके लिए डिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग कैसे। So for this given current I, the deflection theta is large. कब? When आपके पास क्या होगा? N is large, number of turns is large. दूसरी बात हमारे पास area of the coil is large. मतलब जो हमारे पास coil है उसका area क्या हो? Large होगा. A is large. या तीसरी बात हमारे पास this D is strong, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। D is strong. एंड फोर्थ वन अगर बात करें K is small. ये कम होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी आपके पास? ज़्यादा। मतलब थीटा वेरी लार्ज है ना, द वैल्यू ऑफ N is large, एरिया is large, D स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की है, एंड K is small. अब देखते हैं इसमें से किन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पहली बात हमारे पास दिस n, ये जो n है हमारे पास नंबर वन, n कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। कुछ लिमिट के बाद इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज
If the number of the turns in the coil increases, then the length of the wire in the coil that increases. It means that the resistance of the coil that increases. Resistance क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. Also, the coil that becomes bulky मतलब भारी हो जाएगी हमारे पास, which reduces the sensitivity of the galvanometer. It means इसको हम लोग increase नहीं कर सकते हैं beyond a certain limit. दूसरी बात, एरिया की बात करते हैं. If area is large, then most part of the coil that will be out of the magnetic field. ज़्यादा एरिया बना देंगे हम लोग. देखो हमने ये बात की थी, ये हम लोग ने मैग्नेट दे दिए थे ऐसे, इस तरीके से. इसके बीच में हम लोगों ने कॉइल को सस्पेंड किया था. ये अब अगर मान लो इसका एरिया बढ़ा दें तो हमारे पास एरिया नीचे की तरफ को बढ़ेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर हिस्सा है, मान लो एरिया अगर इसने बढ़ा दिया, यहाँ पर था एक्चुअली में, अगर मैं एरिया से इंक्रीज कर दूं ऐसे, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉइल दैट विल बी आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आल्सो with the increase in area, the mass of the coil that also increases. It means that the coil that becomes bulky, so which reduces the sensitivity. So it means that area that can also be not increased beyond certain limit. Area को भी हम लोग किसी certain limit से ज़्यादा increase नहीं कर सकते. तीसरी बात हमारे पास B strong. Yes, this B that can be increased. This B can be increased by using strong poles of the cylindrical magnet. हम लोगों ने क्या कर लिया, ये strong poles जो है वो यूज कर लिया. Strong magnets यूज कर लिया तो B can be increased. K is the restoring torque per unit twist. K that should be small. यही होना चाहिए हमारे पास. अब the value of the K that depend on the nature of the material. For phosphor bronze and quartz, the value of K is small. किसके लिए? फास्फोर ब्रॉन्ज के लिए हमारे पास K की वैल्यू क्या है? स्मॉल. और क्वार्ट्ज के लिए क्या होती है? स्मॉल. दैट्स व्हाई फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज यूज्ड टू सस्पेंड द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर, ताकि उसमें K की वैल्यू क्या हो? कम हो और सेंसिटिविटी क्या आ जाए आपके पास? ज्यादा. मींस इट शोज द रैपिड रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन करंट. इसके लिए हमारे पास तो ये थे हमारे पास मेथड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज होते हैं. कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसी तरह का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बात व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, किस तरीके से ये प्रोड्यूस करनी है. हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, किसी रीजन में किस तरीके से प्रोड्यूस होगी. एंड रिप्रेजेंट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन. हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन. ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? द मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ये जहां पर हमारे पास क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच प्लेन ऑफ कॉइल is always parallel to the magnetic field. Is called radial magnetic field. Radial magnetic field. अब इसको प्रोड्यूस कैसे करना है? पहली बात हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड that is produced by using concave cylindrical magnets. कैसे कर लिया हम लोगों ने? It is produced, कैसे करेंगे हम लोग? पहले by using concave
सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। यह पोल्स हम लोगों ने ऐसे दिए कॉन्वेक्स। और दूसरी बात जो हम लोगों ने वहां पर बात की थी गैल्वेनोमीटर में, देखो ये तो किए थे हम लोगों ने। दूसरा हमारे पास बाय यूजिंग अ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, जो आपके पास कोर है वो कहां पर करना है हम लोगों ने, प्लेसिंग इन द मिडल ऑफ द कॉइल, ठीक है। सो बाय यूजिंग a spherical or cylindrical soft iron core in the middle of wire, ये रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। कहां पर रख दिया, ये मिडल में हम लोगों ने यहां पर रख दिया कॉइल। अब ये तो हो गए प्रोड्यूस। अब रिप्रेजेंट करना है इसको। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो मान लो हमारे पास ये दो पोल्स हम लोगों ने मैग्नेट के मान लिए यहां। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही लगेंगे हमारे पास। ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये हमारे पास साउथ, ठीक है। इनके बीच में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जो है वो सॉफ्ट आयरन को रख दिया है कॉइल के बीच में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीस प्रेफर टू पास स्ट्रांगली थ्रू दिस पोल, इसके थ्रू जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से ऐसे आ जाएगी, या फिर यहां से ये। सो दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन आ रीजन। ये हम लोग ने प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी आप लोगों से डायग्राम से पूछा जाए तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो हमारे पास फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, व्हाई दिस स्ट्रिप इज यूज्ड टू सस्पेंड द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर। हम लोग फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर में, टू सस्पेंड द कॉइल। पहली बात हमारे पास ये जो फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है हमारे पास, जस्ट वन फास्फोर ब्रॉन्ज strip is used to suspend coil in galvanometer. इसके रीजन देखते हैं हम लोग, क्या होता है इसके रीजन। पहली बात हमारे पास ये जो फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, इट हैव नो वैल्यू ऑफ के रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो हमारे पास है वो स्मॉल है। हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मींस के इज स्मॉल दिस फास्फोर ब्रॉन्ज। Hence, it increases the sensitivity of the galvanometer. क्या होगा हमारे पास, therefore it increases sensitivity of galvanometer. दूसरी बात, फास्फोर ब्रॉन्ज दैट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये जल्दी से टूटता नहीं है। So it have high tensile strength। और तीसरा आपके पास इट इज रस्ट रेजिस्टिंग, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। सो थर्ड वन, इट इज रस्ट रेजिस्टिंग।
तो ये हमारे पास रीजन आ गया कि फास्फोर ब्रॉड स्ट्रिप जो है वो कॉइल को सस्पेंड करने में क्यों यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि दैट व्हाई वी यूज द सॉफ्ट आयरन कोर इन द मिडल ऑफ द कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द कॉइल, प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द कॉइल। पहली बात आपके पास इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्या होगी आपके पास दैट प्रेफर टू पास स्ट्रांगली थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर। दूसरा आपके पास सेकंड वन, इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल सो दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। क्या लगेगा इसके ऊपर? मैक्सिमम टॉर्क। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं इसमें इन द मिडल ऑफ द कॉइल। अब बात करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट से, जो कि हमारे पास है कौन सा? दैट इज शंट। शंट पढ़ेंगे बेटा हम लोग की शंट एक्चुअल में है क्या हमारे पास? शंट ये शंट देखो हम लोगों ने 11th क्लास में किया था, एक क्वेश्चन में आया था शंटिंग ऑफ ट्रेन। शंट का मतलब होता है टू चेंज द ट्रैक। अब यहां पर किसका ट्रैक चेंज करना है? पाथ चेंज करना है, करंट का करना है। तो इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस हम लोगों ने जोड़ना है, कैसे? पैरेलल। लेकिन करंट उससे तभी प्रेफर करेगा जाने के लिए अगर उसके लिए क्या है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। So shunt is a low resistance wire connected in parallel to protect the galvanometer or ammeter from a high current, strong current। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या आ जाए आपके पास? इट इज a low resistance wire connected in parallel to a galvanometer or ammeter to protect it from strong current। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। तो जब भी कोई लो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ दिया दैट इज नोन एज अ शंट। कभी ऐसा नहीं बोलना शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं। जब पैरेलल में ही जुड़ गया तो हमारे पास उसका स्पेसिफिक नाम क्या हो गया? शंट। शंट बोल रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि इसको कैसे जोड़ा गया है? पैरेलल में जोड़ा गया है। सो इट इज डिनोटेड बाय एस। एस से हम लोगों ने बेटा इसको क्या करना है? डिनोट करना। तो मान लो हमारे पास जैसे यहां पर मैंने मान लिया ये गैल्वेनोमीटर है, पहले करंट टोटल I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस G है। हमने क्या कर दिया? पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया S। ये A ये B, ठीक है? ये S ये कर दी शंटिंग। अब अगर मान लो इसके अक्रॉस करंट IG मान लिया मैंने और इसके अक्रॉस करंट मान लिया IS, यहाँ पर फिर मिल जाएगा और ये करंट कम हो जाएगा। मतलब कुछ करंट हम लोगों ने इसके थ्रू फ्लो करवा दिया तो इसके थ्रू करंट बच गया कम, तो ये प्रोटेक्ट हो गया किससे? हाई करंट से प्रोटेक्ट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से I इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया था? IG प्लस IS। यहां से मैं एक तो IG की वैल्यू निकाल दूं, IG दैट इज इक्वल टू I माइनस IS, ये नंबर 1 दे दिया। या मैं IS की वैल्यू निकाल दूं, I माइनस IG के बराबर निकाल दूं, नंबर 2 दे दिया। ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, चाहे इसके अक्रॉस निकालें हम लोग चाहे इसके अक्रॉस निकालें, वो क्या रहेगा? सेम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो IG इंटू G, ये इसके क्रॉस आ गया, दैट शुड इक्वल टू IS इंटू S। मैं कोई एक वैल्यू रख देता हूँ, मान लो
वैल्यू रख दी तो मेरे पास आ गया आई माइनस, इसको नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। आई जी की वैल्यू कितनी आई, आई माइनस आई एस, ये रख इनटू जी, ये इज इक्वल टू आई एस इनटू एस, जी से मल्टीप्लाई कर दो, सो आई इनटू जी माइनस आई एस इनटू जी इज इक्वल टू आई एस इनटू एस। मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ, मेरे पास आ गया आई जी इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड प्लस हो जाएगा तो आई एस इनटू जी प्लस एस। यहाँ से आई एस अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आ गया आई एस इज इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस एस इनटू जैसे, तो देख लो करंट निकालने इसके थ्रू तो रेजिस्टेंस सामने वाले रेजिस्टेंस का डिवाइडेड बाय दोनों के रेजिस्टेंस का सामने इनटू टोटल करंट, यही हमने किया था जब दो कोई पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, एक के क्रॉस करंट निकाल के कहते हैं सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब दूसरा अगर मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ आई एस की, आई एस है आई माइनस आई जी, दूसरा भी देख लेते हैं, तो मेरे पास आ गया आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस किसके बराबर आ गया, आई माइनस आई जी इंटू एस। सो यहाँ से आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस, इसको इस साइड ले आओ मैं, तो मेरे पास आ गया आई जी इंटू जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। सो आई जी दैट इज इक्वल टू इसके बराबर एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। देखो ये करंट निकाला सामने वाला रेजिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। अब इसके यूजेस देखते हैं हम लोग कि यूजेस क्या क्या है सर्किट। पहली बात, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। पहला यूज तो ये आ गया हमारे पास जो हम लोग ने यहाँ देखा है। दूसरी बात हमारे पास, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर को किसमें मीटर में कन्वर्ट करने का काम होता है। सो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तीसरी बात आपके पास, दैट इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द मीटर, मीटर की रेंज को अगर हम लोगों ने बढ़ाना है तो भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ऐसा शंट का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे हम लोग, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास। सो लेट अस स्टार्ट। पहली बात हमारे पास, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये एक्चुअल में एमीटर है क्या? एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ध्यान रखो, एमीटर क्या हुआ आपके पास? एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, जो कि किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के काम में आता है। तो इसका मतलब एमीटर है क्या? एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही है। अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलल में लगा देंगे तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो हमारे पास क्या है? दैट गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel with galvanometer।
गैल्वेनोमीटर, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोन एज शंट, नोन एज अ शंट। मतलब पैरेलल में जब लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो उस रेजिस्टेंस का नाम क्या गया, शंट, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने किया क्या एक्चुअल में, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास, इसके साथ हम लोग ने ये रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया ऐसे, ए बी, और ये जोड़ दिया हम लोग ने एस। यहां से देखें तो करंट आपके पास मान लो आई जी, तो इसके अक्रॉस बच गया आई माइनस आई जी, ये करंट, और यहां से फिर करंट कितना होता जाएगा आई। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट आपके पास आ गया यहां पर, ये वाला दिस अरेंजमेंट, ये सारा ये उसके अंदर ही है। जब आप मीटर खोल करके देखोगे तो ऐसे जुड़ा होता है आपके पास एक रेजिस्टेंस का। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने बोल दिया एमीटर, दिस इज नोन एज अ एमीटर। तो मान लो हमारे पास क्या है कि दैट जी विद द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मान, ठीक है। हमारे पास N be the number of scale division in the gैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन गैल्वेनोमीटर में हमारे पास आ गए, मतलब कितने आपके पास डिवीजन लगे हैं, इसमें जो हमारे पास स्केल आएगी वो हमारे पास आ गई एन, एन मान लिया हम लोगों ने, ये दीज आर द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। हमारे पास के, कैपिटल के, दैट इज द फिगर ऑफ मैथ ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब आता है दैट इज द करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, दैट इज करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। सो द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम करंट हमारे पास फ्लो कर सकता है इसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू, दैट इज इक्वल टू आई जी इज इक्वल टू एन के की बात करें अगर हम लोग, मैं के को यहाँ पर बात कर लूँ कि भाई के हमारे पास होता है किसके बराबर है, तो के हमारे पास आता है बेटा के इज इक्वल टू आई जी अपॉन एन, टोटल करंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द स्केल डिवीजन। तो इसके यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं इसको, दैट इज एम्पियर पर डिवीजन, ये इसके यूनिट आते हैं, के यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। अब मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर है इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट आई, टोटल करंट कितना आई मेजर करना है। सो लेट galvanometer is used to measure current I, जो कि क्या है, which is greater than IG, ठीक है, इससे ज्यादा है, ज्यादा। तो उस केस में हमारे पास a low resistance S is connected in parallel with the galvanometer, so therefore a low resistance S is connected in parallel with this galvanometer.
उसी के हिसाब से हम लोगों ने एस की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट इज अ सेम रहेगा आपके पास। हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। सो दिस एस दैट इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट। इस शंट की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो व्हेन दिस रेजिस्टेंस S is connected in parallel with this value of the resistance S is connected in parallel with the galvanometer, it gets converted into a meter। इसका कन्वर्ट हो जाएगा, gets converted into a meter of range 0 to I ampere। अब कितना करंट मेजर करेगा? I ampere। तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा, when S is connected then it gets converted into ammeter of range, कितनी रेंज आ गई? 0 to I ampere। ये हमारे पास क्या हो गया? कन्वर्ट, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो आगे शंट हम लोगों ने कितना यहाँ पे करना है, इसको ध्यान में रखना होता है। ये कई बार शंट की वैल्यू पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालें पूरे एमीटर का, सो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये अलग है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर देखो पैरेलल में जुड़े हैं ये, तो R is equal to 1 upon S plus 1 upon G। सो 1 upon RP that is equal to, ये किसके बराबर आ गया? SG और ये G plus S। सो दिस RP that is equal to GS upon G plus S, which is low। Parallel combination कहता है low। It means that emitter is a low resistance device। The resistance of the emitter is a low and the resistance of the ideal emitter is 0, ठीक है। ideal emitter के लिए क्या आता है आपके पास? ideal emitter, this R that is equal to 0, resistance क्या होगा आपके पास? 0 होगा। So this is the conversion of a galvanometer into ammeter। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि galvanometer gets connected into ammeter by connecting a low resistance in parallel with the galvanometer। सर्किट डायग्राम ये आ गई हमारे पास। यहाँ से क्या कर दो आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर कर दो, I G into G is equal to I minus I G into S। तो S किसके बराबर आ गया? I G अपॉन I minus I G into G, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस आपके पास क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो दैट इज अ GS अपॉन G प्लस S के बराबर हमारे पास आ गया। सो इट हैव अ लो रेजिस्टेंस। अब दूसरी कन्वर्सन आपके पास आ गई, किसमें? वोल्ट मीटर में हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में करते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर एक्चुअल में है क्या हमारे पास? वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर which is used to measure the potential difference between two points in the electric circuit। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो इसको जब भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? जब कोई हम लोग हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे। सो हमारे पास क्या आया? दैट गैल्वेनोमीटर can be converted into voltmeter by connecting high resistance in series with the galvanometer। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई गैल्वेनोमीटर है, दिस वन,
इसके साथ जब हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस R ये सीरीज में जोड़ते हैं, यहां से करंट हमारे पास कितना फ्लो करेगा, IG ही फ्लो करेगा इसके पास, IG। तो ये जो आपके पास पूरी की पूरी जो सर्किट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। ये जो सर्किट है ये क्या हो गया आपके पास, रिप्रेजेंट सा वोल्ट। अब यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है आपके पास वो आ गया V के नाम, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जैसे सो करंट तो IG ही आपके पास फ्लो कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे यहां पर इसकी कि वही है हमारे पास, मान लो क्या है G, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दूसरी बात M विद द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, K with the figure of merit of galvanometer। तो the current for full scale deflection of galvanometer IG that is equal to M। ठीक है, ये रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है तो तब तक हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है IG और UG। उसके बाद अगर मान लो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है, we have to measure the potential difference V by using the galvanometer, then a resistance R is connected in series with the galvanometer। ठीक है, ये हमारे पास है to convert it into a voltmeter to measure the potential difference V, a high resistance R is connected in series with the galvanometer। The value of R is such that when it is connected in series with galvanometer, then if a potential difference V is applied, क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अप्लाई किया गया, then IG करंट flows through it, मतलब इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा IG, अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर ये वोल्टमीटर का आ गया हमारे पास, और वोल्टमीटर जो कन्वर्ट हो गया हमारे पास, तो वो आ गया हमारे पास G प्लस R। सो यहां से देखें अगर हम लोग किसके बाद V, I अपॉन R आता है, सो IG अपॉन दिस IG निकालते हैं हम IG, दैट इज इक्वल टू V अपॉन G प्लस R। ये यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, दैट इज G प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन IG। वोल्टेज ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो द वैल्यू ऑफ R दैट इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G।
This is the value of R which have to be connected in series with the galvanometer to convert it into voltmeter. So when this value of R is connected in series with the galvanometer, then it gets converted into voltmeter of range 0 to V volt. इतनी रेंज का ये क्या बन जाएगा? दूसरी बात, हमारे पास अगर टोटल रेजिस्टेंस देखिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की बात करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, दैट इज RS G plus R. It means resistance increase. So voltmeter that have high resistance होता है, and the resistance of the ideal voltmeter is infinite. ठीक है, इसके लिए आपके पास आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं अगर मैं, उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट. इट शुड हैव अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो ये बेटा हमारे पास कर दिया हम लोगों ने, कन्वर्जन कर दी किसमें? दैट इज द गैल्वेनोमीटर की किसमें? वोल्टमीटर में. तो सीधी सी बात है, क्या करना है हम लोगों ने? का हाई रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया. तो कुल मिलाकर के दो कन्वर्जन की, पहले एमीटर में करेंगे तो एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के, तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं. शंटिंग कर दी किसकी? गैल्वेनोमीटर की. और दूसरा हम लोगों ने कौन सा किया? जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो हाई रेजिस्टेंस जो है किसमें जोड़ दिया? हम लोगों ने सीरीज में जोड़ दिया. बस ये हमारे पास कन्वर्जन था. अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि ये जो आपके पास कोई एमीटर है, क्या ये इतना करंट मेजर कर सकता है कि उसकी वैल्यू IG से कम हो? मतलब क्या हम लोग एमीटर की रेंज को डिक्रीज कर सकते हैं? बात ये है, पहले आपने बोला था कि शंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, लेकिन हमारे पास डिक्रीज की बात हो रही है. ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है दैट कैन बी मेजर current I less than IG by using ammeter. ये और can we decrease the range of the ammeter? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, can we decrease the range of ammeter? देखते हैं होती है नहीं होती. हमें पता है कि जो शंट की वैल्यू निकाली हम लोगों ने यहाँ से सॉल्यूशन की बात करते हैं, S is equal to IG upon I minus IG into G, जिसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है S रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है. अब क्योंकि I is less than IG, ये वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब S नेगेटिव, therefore this S is negative. क्या रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं. विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर द रेंज ऑफ द एमीटर दैट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड और वी कैन नॉट मेजर द करंट I लेस देन IG बाय यूजिंग एमीटर. मतलब कुल मिलाकर की बात क्या हो गई कि डाटा वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर. दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है हमारे पास, which one have high resistance, a milliammeter or a ammeter? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है हमारे पास? ठीक है, which one having high resistance, an ammeter or milliammeter? Justify your answer. So the shunt जो हम लोगों ने कनेक्ट करना है विद द गैल्वेनोमीटर, इन एमीटर और वोल्टमीटर, ओ सॉरी इन एमीटर और मिलीमीटर. सो वैल्यू ऑफ S फॉर एमीटर, ये मिलीमीटर है तो ये भी एमीटर ही, लेकिन कम करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर में करेगा आपके पास.
नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, नेट रेजिस्टेंस ऑफ मिलियमीटर और एमीटर, इन दोनों में नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर था, RP दैट इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। इसका मतलब S की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बात करें हम लोग फॉर मिलियमीटर, जो करंट है I की वैल्यू दैट इज स्मॉल एज कंपैरिजन टू एमीटर, मैक्सिमम करंट को मेजर करेगा, मिलियमीटर कम करेगा क्योंकि मिली एम्पियर में कह रहा है, और ये एमीटर किस में करेगा, एम्पियर में, तो क्या आगे वैल्यू ज्यादा आ गई। सो I इज स्मॉल, हेंस S इज लार्ज, देयरफॉर S इज लार्ज, S की वैल्यू लार्ज, S लार्ज हो गया तो इसका मतलब RP भी क्या होगा, लार्ज होगा उसके लिए। हेंस दिस वन दैट इज अ मिलियमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, एमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ एमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ये जो थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का ये हो गया है अब खत्म हमारे पास। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरी हम लोगों ने कर ली, रीजनिंग हम लोगों ने साथ के साथ कर ली। अब बात बचती है किसकी, सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स व्हिच वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।